आप ये जो कोर्सेज दे रहे हैं स्टॉक आरती में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर? दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे सबको कमाने हैं, पर यहाँ 90% लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये पैसे गवा देते हैं। टुडे वी हैव विद अस अक्षित शाह, फाउंडर ऑफ स्टॉक आरती। हाय, आई एम प्रियंका and welcome to the local MBA Shorts. Thank you, Priyanka. Thank you for inviting me to the local MBA show. So, अक्षित, एक लाइन में मुझे समझा दीजिए कि स्टॉक आरती करता क्या है? See, basically stock आरती comes from the word stocks and सारथी. जी. So जैसे हम लोग को लाइफ में साथी की जरूरत होती है, स्टॉक मार्केट में हर एक को सारथी की जरूरत होती है. So that is the word comes from stock आरती. And what we do, we help you into education of yourself. मतलब like जिसको भी सीखना है, समझना है, and उसका real time implementation to stock market. तो this is what we help a combo of both of these things. So this is how stock आरती works. तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई? See, basically there is a gap into the system. जी. जो सिस्टम में एक एजुकेशन है आपके पास, आज के दिन में एआई के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज नहीं है. सो नॉलेज कभी आएगा? एक्सपीरियंस प्लस इंफॉर्मेशन कम्स नॉलेज, एंड वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है. तो जो एक्सपीरियंस है हम लोग का, वी आर सिंस 21 ईयर्स इनटू स्टॉक मार्केट, तो दिस इज हाउ वी टीच पीपल कि 21 साल में हम लोग ने जो गलती की है वो आप नहीं करें. हाउ टू हेल्प यू इनटू द अगेन दैट रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द थिंग्स. So this is what we do. Nice. So your business is a model where आपने gap identify किया. Yes. And then you created. This is a very big gap जहाँ पे 20 करोड़ लोग हैं and hardly 2% people make money. Okay. So tell me, what's the biggest mistake that people do when they actually enter in the market? See, the biggest mistake anyone can happen, मतलब like ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है. It is called MBA into Gujarati. We assume that मने બધું આવડે છે. That is the biggest thing. Stock market में भी ऐसा होता है. Today in the era of AI and everything, right? People have lots of information. But वो information को वो लोग समझ लेते कि वही वो data है and that is a process, the everything. तो information with lack of, that experience, तो that goes a blunder. So ऐसा नहीं होना. तो that is the thing कि that is the biggest thing I assume, according to me, this is what it goes. मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है लोगों में. फाइनेंशियल एजुकेशन सबको बहुत सारा थीसिस पता है, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आता है ना तभी दैट. तो वहाँ पे इमोशन कम्स, आपका वो क्या डिसिप्लिन हिल जाता है. अगर सर्टन टाइम्स एंड अनसर्टन टाइम्स में आपका खुद का बिहेवियर चेंज हो जाता है. सो वो इमोशंस एक ह्यूमन के पास रहता है. सो दिस इज हाउ दैट एक्ट्स एज अ बैरियर. बट अगर आपको इसमें सक्सेसफुल है तो गो विद डिसिप्लिन, go with consistency, and money is made. And abhi lot of young people are entering into the stock market. Any advice or thoughts for them? Advice तो नहीं बोलूँगा. I can share my thoughts कि जैसे आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, you study MBA, you study doctor, right? या become an engineer, आपको 3 से 5 साल लगते हैं to get that professional degree. Even after completing your graduations. But stock market में क्या है, आज सीखा कल से पैसा बनेगा ही बनेगा. So that is a thing जो Gen Z को हम लोग स्पेसिफिक करते हैं. That think long term, think make some processes, because Gen Z are the most intelligent people right now into. अगर उनको एक अच्छा streamline मिल गया, investing, they think about long term. थोड़ा patience रखिए, it will work out for you. So they can do wonders. So with so many different generations, ages investing, economy कैसी है? Economy is good. I am serving some of my clients, उनका second generation, and planning for their third generations. So this is what we come from. तो stock market and investing is just a business कि मैंने आपके business में invest किया. It grows and everything works for you. So that goes on generation to generations and decades on decades. पहले भी सालों पहले ये था, आज भी है, आगे भी चलेगा. एंड आप ये जो कोर्सेज दे रहे हैं स्टॉक आरती में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर? आजकल ऑनलाइन में ही सबको फ्री में मिल जाता है सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब. इज इट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? बेसिकली आपको जो भी चीज ऑनलाइन मिलती है ना, दैट इज एन इन्फॉर्मेशन. सम पीपल एज्यूम इट इज नॉलेज, बट राइट इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट इन्फॉर्मेशन. जैसे हम लोग बनाते टू डू लिस्ट, वैसे एक बनता है नॉट टू डू लिस्ट. तो एक इन्फॉर्मेशन का भी ऐसा ही क्राइटेरिया है. व्हाट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू एब्जॉर्ब एंड व्हाट आई वांट टू लीव. अगर वो बाइफर्केशन नहीं होगा ना, तो टुडे एवरीवन इज बॉम्बार्डेड, नॉट लोडेड, बॉम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन. आप एआई में डालो, ये डालो, दे विल टेल यू एवरीथिंग. बट व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस, क्या चीज़ नहीं करना है? सो दैट वर्क्स फॉर देम.
How do you build that trust that you are their go-to person? See, basically trust, the word is very small, but it takes a decades and decades to build. एंड शायद वो एक दो दिन में भी ब्रेक हो सकता है आफ्टर बिग. सो इनटू माय जर्नी वी हैव बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंसी. हम लोग का जो भी डिसिप्लिन है अबाउट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग का थीसिस है, कंटिन्यू विद द सेम थीसिस जो सालों से चल रहा है, आगे भी वो चलेगा. सो दैट इज हाउ अ ट्रस्ट इज बिल्ड. जो मैं आपको बोलता हूँ हम लोग वही करते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, दिखाने के दांत अलग, खाने के अलग. सो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं चलेगा. ये टू भी जो है वो है. कभी ऐसा लगा बिजनेस नहीं चलेगा? बहुत टाइम लगता है. अभी भी लगता है कि वॉर है, ये तो कल क्या होगा. सो दैट इज ए थिंग. अगर आप लास्ट 100-150 साल का अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी देखेंगे, मार्केट देखेंगे ग्लोबली, कुछ ना कुछ तो दुनिया में चालू रहता है. तो कल क्या होगा नो वन नोज, राइट. अभी भी जैसे वॉर वगैरह एनीथिंग इज हैपनिंग. सो इंडिया को हाउ इट विल बी इम्प्लीकेट, बट यू नो नाउ वी आर इनटू अ ग्लोबल मार्केट. और कंट्री में वॉर हो रहा है बट उसका इम्प्लीकेशंस इंडिया में आ रहा है बिकॉज वी आर ए ग्लोबल इकोनॉमी नाउ. सो एवरी नाउ एंड देन इट गोज ऑन मार्केट्स में. पर्सनल लेवल भी बहुत सारा ऐसा अप्स एंड डाउन्स आया है, बहुत सारा देखा है. सो अगर उसको बताने बैठूंगा तो आई थिंक शायद 2-3 एपिसोड निकल जाएगा. तो एक सोल्यूशन दीजिए. हाउ डू यू मैनेज रिस्क? वन पॉइंटर ऑन दैट. रिस्क अगर वर्ड लेंगे ना एज ए वर्ड तो बहुत भारी है. बट इफ यू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क, वंस यू डाई फ्रॉम इट काइंड ऑफ बंजी जंप, आपको एक कैलकुलेशन है कि ये रोप मेरे को पकड़ के रखेगा, मैं गिरूंगा नहीं. बट यू विल बाउंस बैक अगेन, वापस यू विल फॉल. तो दैट इज अ प्रोसेस. सो वो एक प्रोसेस में जुड़ जाइए. फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर नेचर, कि आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कैसे करना है. इट शुड बी टोटली बेस्ड ऑन द नेचर. तो वो आपको पकड़ के रखेगा यहाँ पे. अगर वो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इफ यू डोंट लव एनीथिंग, राइट, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो डू यू व्हाट यू लव. एंड अगर आपको पैसों से प्यार है तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से भी प्यार हो सकता है. You know, you opened my eyes, to be honest. अब तक लगता था गैम्बलिंग है स्टॉक मार्केट, but somewhere I'm investing in a person or a company. Right. What are your thoughts on that? See, the word gambling comes 20 years ago. So don't take it as a gambling. Gambling and risk क्या है? That आप जो कर रहे हो आपको नहीं पता. Means what you do, you don't know what you are doing, so that is risk. But when you start with that calculated risk and everything, so it is not gambling. It is a, you know, structure and constructive work to do. So then can you explain what is trading, investing? It's not gambling, we know. But how does one understand these two concepts? See, trading क्या है ना, everyone is a trader. According to me, into my thesis. And the mother is the best trader. Every woman is a best trader. Suppose जब भी आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए ट्रेड करते थे. अभी हम लोग हमारे बच्चे के साथ ट्रेड करते हैं. So trade, how it happens at home also. If my son or daughter does this, या आप इतने मार्क्स लाएंगे, जनरली इट इज अबाउट, तो मैं आपको ये दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, राइट. तो दिस इज ट्रेडिंग. अगर ये चीज़ होगी, वॉर होगी, तो मार्केट साइड नीचे जाएगा. एंड कुछ अच्छा चीज़ होगा, मार्केट ऊपर. तो एवरीथिंग इज ट्रेडिंग. सो बट यू टेक ए कैलकुलेटेड थिंग कि हाँ दिस इज द अंडरस्टैंड, ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ये एजुकेशन है. इफ यू प्लान दैट, पुट इट इन ए प्रोसेस, सो एवरीथिंग गोज फाइन. Where do you see Stock Aarti 5 years from now? There are around 20 crore people as of now. 5 साल में शायद और बढ़ जाएंगे. My objective about Stock Aarti is to reach to the maximum people. How we can help with the society through education, through real time implementations of, you know, things जो भी आपने सीखा है, to create a real long term wealth. अगर वो ट्रेडिंग भी सीखना है तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी. तो ट्रेडिंग होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग है, बट यू नो टाइम बेस्ड ट्रेडिंग, योर नेचर बेस्ड ट्रेडिंग, एवरीथिंग. तो वो हम लोग सिखाते भी है. आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या दोनों चीज़ हो. सो डैट यू नो डैट माइंड प्रोग्रामिंग, बिहेवियर, फाइनेंस, सब कुछ वहाँ पे इनडायरेक्टली कवर हो जाता है. बट आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है. बट एट द एंड यू विल बी अ गुड ट्रेडर या वेरी गुड इन्वेस्टर. एक रूल जो आप सबको सिखाते हो, बी इट जेन ज़ी, मिलेनियल्स, व्हाट डू यू टेल देम? सबसे पहले पेशेंस लगेगा, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद पैसा भी लगेगा. बिकॉज नो कैपिटल मार्केट, राइट. तो ये सबका कॉम्बिनेशन विल वर्क फॉर यू. क्रिएट ए पैसिव इनकम. सी, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज लुक्ड इनटू इंडिया एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. बट कभी कभी आपका रियल सोर्स ऑफ इनकम से भी ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगा है. कभी कभी बेस्ड ऑन टिप्स, रिकमेंडेशंस एंड एवरीथिंग, यू नो, इन्फ्लुएंसिंग द थिंग्स. सो दैट इज हाउ कि वो कैपिटल आपका हार्ड अर्न मनी है, वो आपको वो क्या जाना नहीं चाहिए. सो देयर इज वी कम इन टू पिक्चर कि how to calculate it, what is beneficiary for you, your family, your generation. Even we do legacy planning. Means? तो legacy planning क्या होता है कि
आइडेंटिफाई योरसेल्फ क्या हो. अगर सपोज मैंने रैली ड्राइविंग नहीं किया है, राइट, आई वोंट लेट माई चाइल्ड टू डू, बट मैंने किया है. बट आई नो दैट कैलकुलेटेड रिस्क, हर एक जगह रिस्क है, कैलकुलेट है. सो आई वॉन्ट टू डबल दैट रिस्क. तो मैं मेरे बच्चे को सिखाऊंगा हाउ टू ओवरकम दिस रिस्क. बट यू ऑल्सो, आप भी ये कर सकते हो. देर इज नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, एवरी वन कैन डू. बट वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, दैट वी कैन टेक, एंड वो रिस्क से आपके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Understood. Tell me who should reach out to you and how can they reach out to you? See, basically we help people. My objective about stock market is like how we can help to the society. It is a giving back to the society. मैंने जो भी 21 साल में सीखा है, right, I want to give it back. So I learned the word. Why I started coaching? Why I learned first? Because हम लोग में संस्कृत में कहावत है into India कि ज्ञानम ही परम धनम. ज्ञान ही परम धन है. लोगों पैसे को धन मानते हैं, बट ज्ञान, नॉलेज, यू नो, दैट ज्ञान, दैट इज अ परम धन. देन आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल. सो आई लर्न द अनदर पार्ट ऑफ इट. ज्ञानम ही परम दानम. ज्ञान ही परम दान है. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग कि दिस इज द ओनली वे कि आपके जाने के बाद भी दुनिया में आपका वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास रहेगा. जैसे हम लोग आईज डोनेट करते हैं, ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, इज अ गुड पार्ट. ज्ञान भी डोनेट करके जाइए, एंड एवरीवन हैज दैट. सो माय रिकमेंडेशन टू एवरीवन, आपको जो अच्छा लगता है, स्टार्ट टीचिंग टू द वर्ल्ड. एवरीवन, गॉड ने हर एक को एक जन को एक गिफ्ट दिया है. आइडेंटिफाई इट एंड स्टार्ट टीचिंग. You will be a different person after a year. I am definitely coming to you. In all these years, of course, stock markets are the scary bit. Mutual funds थोड़ा safe होता है तो people get into it. But I would like to learn from you. Tell me, is there like the institute, कहाँ पे है वो, लोग कहाँ आ सकते हैं? The best way to reach me, that we are located at Borivali West, Mumbai. हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिखाते हैं. ऑफलाइन इज प्रेफर्ड मोर बिकॉज वहाँ पे आपका इमोशंस रहता है. वी आर इनटू प्रैक्टिकल कोचिंग, राइट. तो प्रैक्टिकल कोचिंग में ऑफलाइन इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू. एनीवन above 15 years of age want to learn about stock market and their parents also, right. हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व क्यों करते हैं? सपोज आई हैव सो मेनी केसेस डन. मैंने 15 साल के बच्चे को स्टॉक मार्केट सिखाया, ट्रेडिंग सिखाया, ग्रेजुअली दे लर्नड ऑल्सो, राइट. बट आफ्टर 18 years अगर उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग को, मीन्स आई कोच टू ड्राइविंग, बट पेरेंट्स बोलते कि हम लोग को इसको कार ही नहीं दिलाने वाले. तो द कार इज योर कैपिटल. मतलब आपको बच्चे को ड्राइविंग करना आता है बट इसका कैपिटल ही नहीं है. सो हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. आवर वेबसाइट है एंड व्हाट्सएप एंड पर्सनल कॉल्स आर द बेस्ट वे टू रीच मी. अक्षत, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग मी. आई थिंक मेरा बहुत सारा परसेप्शन जो थोड़ा नेगेटिव में जा रहा था, इट्स ओपनड अप वेरी वेल. इट वाज लवली हैविंग यू ओवर. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड अच्छा लगा सुन के कि आपका परसेप्शन चेंज होगा. अभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना है. थैंक यू. तो दोस्तों, मार्केट से डरना बंद करो और उसे समझना शुरू करो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एट द लोकल MBA शॉर्ट्स विद अ न्यू बिजनेस आइडिया एंड अ लॉट मोर लर्निंग. थैंक यू. लोकल MBA यही हमारी पहचान है.